शामिल किया जाना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। It's really an honor and privilege to invite a personality like Abhishek Manu Sanghvi to the dais to address us. The stage is all yours, Dr. Singh. Please come. मैं निवेदन करूँगा आप की गहराइयों से बोलें और से ना बोलें, आपको लोग बहुत बेसब्री से सुनने का इंतजार करें। डॉक्टर सिंह। Honorable Chief Minister Rawat Sahab, Chairman of the National Minorities Commission, distinguished persons of the dais, I will not name them individually, leaders of institutions, leaders of communities, all the office bearers of the Uttarakhand Minorities Commission, leaders of so many several communities, friend, philosopher and guides of those communities sitting here in the audience, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I stand before you to deliver the keynote address. There could be hardly a more appropriate venue to discuss the complex issues of secularism and minorities than in the capital city of what is known as Devbhoomi, the abode of the gods. And there can be hardly a more auspicious day to discuss it than the World Minority Day. It is of course a very special privilege that my dear friend and the Honorable Chief Minister is also the Minorities Affairs Minister is here with us today, along with so many other distinguished dignitaries on this dais. Friends, a few preliminary points. Firstly, I have the usual keynote speaker's dilemma. The dilemma is always which key to choose and which note to strike. Secondly, this dilemma is increased considerably by the humongous scope of the topic before us today. Because this topic is as large as the universe. Secularism, minority rights under the Constitution, the issue of state aid to minority institutions, the interfaith dialogue, the internal and external threats to secularism, good governance in a multi-religious, multi-ethnic nation, and so on and so forth. The list of sub-themes is exhausting without being exhaustive. Each sub-theme can support a PhD thesis or a day-long seminar. So I shall, with your permission, perform the role of a fan dancer. A fan dancer is someone who touches upon these topics without really covering them. It is important, of course, also, as my third preliminary point, to remember that these words like World Minority Day, World Disabled Day, Women's Day, these are not mere acronyms. These are not mere slogans and shibboleths. It is vital to give content and meaning to such days, and to do so with some blunt, plain speaking, which I intend to do, with your permission, or perhaps even without your permission. Friends, no discussion on World Minority Day can even begin without considering the various facets of the bedrock of our Constitution, and that is one word: secularism. There are few words which can be more vital, more enduring, and yet more misunderstood and more maligned than this one word, secularism. It's important to understand its context, its contours, its boundaries. The standard definition of secularism, which is the old classic Western one, of a rigorous wall of separation between church and state, is largely non-contextual to a country like India, and it's oversimplistic to apply it. No doubt, one facet of it, that the state shall not interfere in individual religions, is obvious and has meaning and validity even in India. Second, that there shall be no state established religion also has validity. Thirdly, the mandate that there shall be no theocratic state, no common collusive policy between the state ruler and the state church to achieve some common object also has validity. But these are all elementary concepts.
The antiseptic, passive, negative indifference of the state to religion is, however, what might be called state agnosticism or state atheism, has never been part of Indian secularism. That is the main difference between the Western approach to secularism and the Indian approach. मित्रों, भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे देश में जो विविधताएं हैं, वैसी विविधता मैं समझता हूं पूरे विश्व में कहीं नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के बारे में कोई भी भारत के संदर्भ में सही नहीं समझ सकता जब तक कि इस देश की विविधता को न समझे। इस आंकड़े से हम सब वाकिफ हैं कि भारत विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन साथ साथ क्षेत्रफल में 7वां है, आर्थिक शक्ति के रूप में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 4था है, 22 अनुसूचित जातियां हैं, भाषाएं हैं, और उन भाषाओं की सूची में मेरी भाषा राजस्थानी और भोजपुरी अभी शामिल होनी बाकी है। इसके अलावा 1652 कथित मातृभाषाएं हैं, 2000 बोलियां हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रेलेशिया, तिब्बतो बर्मन से लेके मोंगलोइड और करीब करीब हर जाति प्रजाति यहां पर है। विश्व के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म यहां हुआ है और सबसे विश्व की तीसरे नंबर पर है मुसलमान समुदाय की संख्या यहां, और विश्व के सबसे जो छोटे धर्म है उनकी सबसे अधिकतम संख्या भारत में है। पारसीस को ले लीजिए, जैन्स को ले लीजिए, बहाईस को ले लीजिए। तो इस विविधता के संदर्भ में ही अल्पसंख्यक दिवस को भी और धर्मनिरपेक्षता को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए लगभग 200 वर्ष पहले एक अमेरिकन ने, जो बड़ी मुश्किल से एक बार सिर्फ भारत आया था, पूरी तरह से भी आया भी नहीं था, मार्क ट्वेन, बड़ा प्रभावशाली लेखक था, उसने लिखा इस विविधता के बारे में, and I quote, he said, "The land of dreams and romance, the country of 100 tongues." ये लिखा उसने 19वीं शताब्दी के शुरू में, मार्क ट्वेन ने। The country of 100 tongues, 8,000 religions and 2 million gods, the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, the great-grandmother of tradition, the land that all men desire to see, and having seen once, even by a glimpse, would not give that for the shows of all the rest of the globe combined. ये भारत का सौष्ठव था, गौरव था, एक अमेरिकी की आंखों में 200 वर्ष पहले। भारत में जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक सिमेंटिक मुद्दे को मैं पहले हटा दूं। धर्म का तात्पर्य भारतीय संस्कृति में है सच्चा, सच्चाई, कानून, सही रास्ता। धर्म का मतलब भारत की संस्कृति में रिलीजन नहीं रहा है कभी। तो उस आधार पे धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द है, क्योंकि आप सही रास्ते, सच्चाई या कानून से परे कैसे हो सकते हैं, निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। तो अगर सिर्फ सिमेंटिक आधार पे देखें तो शायद पंथ निरपेक्षता ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि जिसमें आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, सबसे बराबरी। लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्षता में जब धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल करता हूं तो उसी सेंस में करता हूं, ना कि धर्म और रिलीजियस के नाम पे के आधार पर बोलता हूं। हमारा अप्रोच उसमें हमेशा सर्वधर्म समभाव का ज्यादा रहा है बनिस्बत निरपेक्षता का एक नेगेटिव स्वभाव। ये भारत का एक सकारात्मक इंक्लूसिव सा अप्रोच रहा है सेक्युलरिज्म। यूएस में ये मानते हैं कि दोनों तरफ से बायलैटरल एक्सक्लूजन, न किसी प्रकार का धर्म शासन में और न शासन का हस्तक्षेप किसी प्रकार से धर्म में। फ्रांस और टर्की में इसका एक विभिन्न मॉडल है। वहां पर है कि यद्यपि धर्म का शासन में कोई जगह नहीं है, लेकिन शासक पूरी तरह से धर्म को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। हमारा इस
इसमें भिन्नता है भारत के अप्रोच में। सर्वधर्म समभाव मैं समझता हूँ ज्यादा सटीक पड़ेगा भारत के संदर्भ। एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है भारतीय, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, थे पहले भारत में हिंदुस्तान में, प्रोफेसर भार्गव। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को उन्होंने लिंकन के बड़े प्रसिद्ध शब्दावली में जोड़ा। लिंकन ने कहा था गणतंत्र के बारे में, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो उन्होंने लिखा कि भाई बाय द पीपल तो समझ आता है, लोग चुनावित करते हैं, फॉर द पीपल भी समझ आता है, गणतंत्र आम आदमी के लिए है, लेकिन लिंकन ने ऑफ द पीपल क्यों इस्तेमाल किया? ऑफ द पीपल तो विचित्र है, अंग्रेजी में विचित्र है और वैसे भी विचित्र है। तो कहा ऑफ द पीपल इसलिए इस्तेमाल किया कि उनका इरादा था कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, आप में से हर व्यक्ति को, यहाँ के हर व्यक्ति को वो ये महसूस करवाए या आभास करवाए कि देश के हर कोने में उनको एक मालिकाना हक है, ओनरशिप ऑफ डेमोक्रेसी। ये कॉन्सेप्ट को कन्वे करने के लिए कि हर व्यक्ति को, किसका कोई भी धर्म हो, कितना भी अल्पसंख्यक हो, कितने भी छोटी मात्रा में हो, लेकिन उसको एक आभास होना चाहिए कि उसको कोई ना कोई मालिकाना हक है इस गणतंत्र में। और यही एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का परिभाषा है। ये मानव जाति का इतिहास का सबसे, शायद मैं समझता हूं, अद्वितीय चमत्कार रहा है। मैं तो मानता हूं चमत्कार कि रेडक्लिफ जैसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित जो कृत्रिम रेखाएं बनाई 1957 में, 1947 में, और इंसानियत का सबसे बड़ा पलायन हुआ और उस पलायन के दौरान धर्म के आधार पे कत्लेआम हुआ, कोहरम मचा। उसके बावजूद हमारे पूर्वजों में इतनी समझ थी कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर उन्होंने संविधान बनाया। ये कितनी अनूठी बात है। और मैं समझता हूं इस धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाने में अडिग रहना उस संदर्भ में एक असाधारण छलांग थी मस्तिष्क की, और इस असाधारण छलांग के लिए हमें उन लोगों की तरफ नतमस्तक होना आवश्यक है और बार बार याद करना, धन्यवाद देना, और एक ऐसा ऋण जो कभी ये देश चुका नहीं सकता, चाहे वो गांधी का ऋण हो, नेहरू का ऋण हो, पटेल का ऋण हो, आजाद का ऋण हो, अम्बेडकर का ऋण हो। ये लोग अडिग रहे उस संदर्भ में। आज संदर्भ उससे कहीं ज्यादा ओछा और छोटा होता है, तब भी हम अडिग नहीं रह पाते। इन महान नेताओं ने ये विचार सिर्फ 47 में पहली बार प्रादुर्भाव नहीं किया। ये उनकी लेखनी में 1929 लाहौर डिक्लेरेशन में, या 31 में नेहरू जी ने, पंडित जी ने कराची रेजोल्यूशन, अलीगढ़ में 38 में, 47 में, 48 में उनकी भाषण पढ़े, उनके रेजोल्यूशन पढ़े, उनकी ड्राफ्टिंग देखें, तो सब में ये स्टेट्समैनशिप और दूरदर्शिता झलकती। और यही इस देश के निर्माण की सही नींव है। आजकल ऐसे व्यक्तियों को निंदा करने वाले बौने हैं, पिग्मीज हैं, वो क्या समझ सकते हैं इनकी विशालता। हमारे संविधान में जो 6 लगभग अनुच्छेद दिए हैं, 25 से 30 और विशेष रूप से 25 से 28, ये धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक विषय और अवसरों के अधिकार के पूरे आधार है और एक अनूठा संतुलन दिखाते हैं। आर्टिकल 25 seeks to accomplish 4 objectives. Firstly, it declares the equal, non-discriminatory right to freedom of conscience and the practice of individual religious beliefs. Secondly, it subjects it to the police power of the state, but limits it to very specific criteria of public order, of morality and health. Thirdly, it affirmatively asserts the right to regulate all aspects of religious practice. और संथारा के विषय में मैं एक पायलट स्टडी के हिसाब से, आपको उदाहरण के हिसाब से बताऊंगा कि मानव अधिकार के आधार पे, संविधान के आधार पे, अभी परसों ही निर्णय आया उच्चतम न्यायालय का, परसों आया कि हमारा अधिकार क्षेत्र कानून में धर्म को भी नियंत्रित कर रहा है पूरी तरह से, लेकिन धर्म के किस हिस्से को, कहां तक, किस कुरीति को, वो सीमाएं हम निर्धारित करते हैं।
The right to regulate all secular aspects of religious practice and to subsume Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists under a common umbrella for the limited purpose of addressing some socially obnoxious or historically obnoxious practices. और मैं जिक्र करूँ अब देरी में कि किस प्रकार से एक प्रकार से भारतीय सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता आदर भी दिखाती है धर्म की तरफ और अनादर भी दिखाती है। अनादर दिखाना आवश्यक है उन कुरीतियों को हटाने के लिए जो धर्म में आ जाती है या धर्म के नाम पे आ जाती है। जो ये तीन शब्द हैं इस 25 अनुच्छेद में, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, आस्था और विश्वास का हक, अभ्यास का हक और प्रोपगेट करने का हक, विस्तार करने का, ये त्रिमूर्ति संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता का सबसे बृहद रूप में प्रतिबिंबित करती है। हर शब्द अपने आपस में एक बहुत बृहद व्यापक निरूपण रखता है, लेकिन समस्या शब्दों को लेकर नहीं है। समस्या उनके मर्म को समझने में है और उनको लागू पर कार्यान्वित करने में, उनको आत्मसात करने में। और किसी धर्म की व्याख्या और उसका प्रचार कोई भी व्यक्ति बिना किसी जबरन धर्म परिवर्तन के कर सके, ये भी इन अनुच्छेदों में निहित है। अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, कुछ प्रदेशों ने कोई कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन ये सब इतना विशाल एक समुदाय मूल्यों का इन 3-4 आर्टिकल्स में हमारे संविधान में है। मैं समझता हूं भार्गव ने जो इसमें एक संक्षेप में कहा कि जो 5 फीचर्स हैं सेकुलरिज्म के, वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं इंडियन सेकुलरिज्म के। 5 विशेष यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। What are those 5 distinctive features of Indian secularism? Number 1, its multi-value character, which means not wedded to any particular theme or approach, but like typical in India, subsuming diverse values. Second, its principled distance from religion, but no walled separation. सर्वधर्म सर्वभाव का मतलब ये नहीं कि हम एक एंटीसेप्टिक दीवार बना देते हैं धर्म और स्टेट के बीच में, एक सैद्धांतिक दूरी रखते हैं, लेकिन नॉट अ वर्ल्ड सेपरेशन। थर्ड, इट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल एंड कैपेशियस एंड देयरफॉर इंक्लूड्स मल्टीपल अप्रोचेस एंड डेफिनेशंस बाय मल्टीपल ग्रुप्स इन अ सोसाइटी एंड बाय मल्टीपल सोसाइटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ईच वर्किंग आउट देयर ओन सेकुलरिज्म। फोर्थली, combining an active hostility to some aspects of religion with an equally active respect for its other dimensions. And lastly, attending simultaneously to issues of intra-religious oppression as also to inter-religious domination. ये बड़े सूक्ष्म 5 सिद्धांत में समझता हूँ भारतीय सेकुलरिज्म की विशेषताएं हैं जो आपको विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों में नहीं मिलेगी। सेकुलरिज्म शब्द तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये विभिन्नताएं, ये विशेषताएं हैं इस देश में। Let me give you an example of anti-secularism or anti-religious approach of Indian secularism. A lot of our provisions, Parliamentary Act banning sati in the Hindu religion, the application of Section 125 CRPC to minority communities, the abolition of untouchability in our constitution itself. Some of these can be seen as serious inroads into freedom of religion, or the practice of Devadasis in temples, or abolition of child marriage. A lot of these are propounded as parts of religious rights, but the Indian Constitution has stood firm and Indian law has intruded in a sense showing, and I would say rightly showing, the right amount of disrespect to purify religion. अब जरा अल्पसंख्यकों के विषय में 2 शब्द। सेकुलर तो मैंने एड्रेस किया है। ये बड़ी रोचक बात है कि इतनी विभिन्न रिपोर्ट्स आई हैं 1928 से। 1928 में पहली बार अल्पसंख्यक संबंध में सब्जेक्ट पे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता पे एक समिति बनी। तब से लेके आज तक इतनी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का किसी कानून में उस शब्द की परिभाषा नहीं है। 28 में जो आई थी रिपोर्ट उसमें नहीं है। उसके बाद कई और समितियां गठित,
1992 में जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना, उसमें भी एक सर्कुलर डेफिनेशन है कि जिसको भी नोटिफाई करते हुए अल्पसंख्यक है, बाकी कोई परिभाषा नहीं है। मैं समझता हूँ ये आवश्यक है, कहीं ना कहीं अब शायद परिभाषित करना भी। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में है, एनसाइक्लोपीडियाज में है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार अल्पसंख्यक किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला वह जनसमूह है जो एक भाषा, एक धर्म और एक विश्वास तथा एक मूल्यों को मानता है। यूनाइटेड नेशंस ने ICCPR में, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, अनुच्छेद 27 में प्रयत्न किया है परिभाषित करने का। उनके अनुसार अल्पसंख्यक वह है जो किसी राज्य में संख्यात्मक रूप से कम हो, प्लस वह समूह प्रभावशाली न हो, प्लस उस समूह के सदस्यों की धार्मिक भाषाई पहचान शेष राज्य के निवासियों से भिन्न हो, और वो समूह अपनी संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा को लेकर एकजुटता की भावना का प्रदर्शन करेगा। Friends, in one sense, the very recognition of minority rights can be seen as a denial of the right to equality. Article 14 and 15 of our Constitution, 16, many other articles.